Hello student, our today's topic is application of Gauss theorem. Okay, so there are three types of application of Gauss theorem. First application is field due to an infinite long straight charged wire. Okay, in Gauss theorem we will calculate the electric field. Okay, in application of Gauss theorem, we will calculate the electric field. So there are three types of application. First one is the electric field due to an infinitely long straight charge wire. Okay, here now we have an infinite long straight charged wire like a simple metallic wire. Okay, used in our home and various electronic purpose. Okay, and the second application is field due to a thin infinite plane sheet of charged. Okay, here we will use a plane sheet. Okay, and field due to a uniformly charged thin spherical cell. Okay, so here we will use a thin spherical cell. Okay, so now from these application we have concluded that in the first application, field due to an infinite long straight charged wire, in the first application we will use a linear charge distribution concept, because here we are having a wire. Okay, and wire is in the cylindrical shape. Okay, where the diameter is very small. Okay, if we take an example of a thin metallic wire, then the length of a thin metallic wire is very or much greater than the diameter of a wire. Okay, so here what kind of charge distribution is taken place? The linear charge distribution. Okay, and in the second application, the field due to a thin infinite plane sheet of charge, here we will see we have an area, a plane sheet area of a plane sheet. Okay, so here what kind of charge distribution is taking place? The surface charge distribution. Okay, and in the third one, field due to a uniformly charged thin spherical cell, here what kind of charge distribution is taken place? For a sphere, the वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसका मतलब है कि पहले एप्लीकेशन में सिर्फ हमारे पास क्या है, एक पतला वायर है. तो हमारे पास पतले वायर में हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर द लेंथ ओनली. हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंथ कंसिडर करेंगे. देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन एज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट है तो वो प्लेन शीट कैसी होगी? प्लेन शीट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं. तो यहाँ उसका सरफेस एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर हम लोग स्फीयर लेंगे, स्फीयर मीन्स फुटबॉल टाइप. ओके, मेटेलिक बॉल, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वहाँ पे हम लोग सरफेस और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. ओके, तो see the next, the first one, field due to an infinite long straight charged wire. Okay, so see, consider an infinite long thin straight wire. See, suppose it is an infinite long thin straight wire. ठीक है student, it is a wire only where the length is very greater than the diameter. ओके, लेकिन हमको ये चीज़ अच्छे से दिखाना है. द शेप ऑफ द वायर इज सिलेंड्रिकल ओनली. तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाना है, इसलिए हमने इसका डायमीटर भी क्या लिया है? थोड़ा ज़्यादा करके लिया है. ओके, लेकिन ये है क्या? an infinite long thin straight wire. Okay, with uniform linear charge density. what do you mean by uniform linear charge density? लीनियरली इसमें जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे. ओके, नाउ सी, एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा. द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, ओके, बाय व्हाट? and volume charge density is denoted by sigma and surface charge density is denoted by del. Okay, किसी किसी बुक में ये different दिया रहता है. Okay, now see the diagram. Suppose this is an infinite thin straight wire. Okay, and here the
charges are linearly and uniformly distributed. Okay, now see, this is point A, this one is point B, and this is point C. now see the point A. ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला एरिया देखेंगे, इफ़ वी सी द एरिया ऑफ पॉइंट ए, तो हमको क्या समझ में आता है यहाँ पे, अगर हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे, what then what will be the direction of area vector, this is, and this unit vector n represent, this unit vector n cap represent the direction of this area vector. Okay, similarly for the surface B, this unit vector n represent the direction of the area vector. Okay, and for this surface, see this surface, ठीक है, देन इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड. ओके, एंड ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अपवर्ड. ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, अगर चार्जेस पॉजिटिव रहेंगे, देन व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स आउटवर्ड. ओके, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, आउटवर्ड. और अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमेशा इनवर्ड. तो सिंस हियर द चार्जेस आर पॉजिटिव, देन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड ओनली. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर ये दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यूनिट वेक्टर एन और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि हमने ये वाला सरफेस लिया है. ओके, एंड फॉर दिस सरफेस अगेन इट इज, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E. Okay, so up to here we have completed the diagram. Okay, suppose the length of this wire is L, or length of this conductor is L. Now see, from symmetry the electric field E is everywhere radially in the plane cutting the wire normally, and its magnitude only depend on the radial direction. ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ डिपेंड करेगा, सिर्फ इसके रेडियल डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर रेडियली इन द प्लेन कटिंग द वायर. ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, रेडियली मीन्स लाइक दिस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर लाइक दिस. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, फ्रॉम गॉस लॉ. व्हाट इज गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. ds इज व्हाट, एरिया. तो हम लोग यहाँ पे कितने टाइप के एरिया देख रहे हैं, एरिया हमने कितने टाइप का देखा, फर्स्ट द एरिया ए, सेकंड एरिया बी एंड थर्ड एरिया सी. बेसिकली हमारे पास कितने एरिया हो गए, एरिया ए बी एंड सी. अच्छा, एक चीज़ यहीं पे देख लो डायग्राम में, व्हाट इज़ द डायरेक्शन. हम लोग क्या कर रहे हैं, द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. ओके, एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है. तो हमको क्या देखना पड़ेगा, थीटा. तो देखो किसके बीच का, डी एस और ई के बीच का थीटा हमको देखना है. तो यहाँ पे यही यूनिट वेक्टर एन ही तो रिप्रेजेंट करता है ना, डी एस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर एन ही रिप्रेजेंट कर रहा है. हम लोग देखे भी हैं दैट डी एस इज इक्वल टू डी एस वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन. ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट किए थे एरिया वेक्टर तो हम लोग ये वाला किए ही थे. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर एन, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. ओके, तो देखो यहाँ पे एन और ई के बीच या डी एस और ई के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री. तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 90, और कॉस थीटा 90 है मीन्स कॉस 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, 0. सिमिलरली हियर, यहाँ पे भी देखो एंगल कितना है, ई और एन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. यहाँ पे देखो फॉर दिस सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एन एंड ई एंड एन, थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं. तो हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1. तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यहाँ और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 0. ओके, नाउ सी,
तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, तो ऑब्वियसली हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. इट इज़ नथिंग बट द गॉस थ्योरम. और ये किसके इक्वल होता है? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज of that surface. Okay, or phi E is equal to q upon epsilon naught. Take it as equation number 1. Now phi E is equal to total surface integral of E dot ds. Okay, and ds is what? Okay, ds is what? Unit vector n cap into ds vector. ठीक है, वो एरिया वेक्टर वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है. ओके, नाउ सी, तो हम लोग ds के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे? ds वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर n कैप. ओके, नाउ सी, अब हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है? हमारे पास कितने एरिया थे? 3 एरिया थे. एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी. ओके, नाउ सी द फर्स्ट एरिया ई डॉट एन डी एस. ठीक है, दिस इज द टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया ए प्लस, तीनों को हम लोग ऐड ही करेंगे ऑब्वियसली. सेकेंड इज टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया बी ई डॉट एन डी एस. एंड थर्ड इज टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया से ई डॉट एन डी एस. तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कॉस 90 डिग्री. और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कॉस 0 डिग्री. ये हम लोग कैसे लिख लिए? ई डॉट डी एस. डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्या आ जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा. ओके, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, ये वेक्टर यहाँ पे गलती से लग गया है. ओके, तो यहाँ पे ये ई डी एस कॉस थीटा. और हमने देखा था डायग्राम में कि थीटा कितना था? 90 डिग्री. ए के लिए जो थीटा था 90 डिग्री, बी के लिए 90 और सी के लिए 0 डिग्री. ठीक है, तो ये कॉस 90 0 हो गया, यहाँ पे भी कॉस 90 कितना हो गया? 0 हो गया. तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा? ये ई डी एस कॉस 0. ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1. देयरफॉर ये कितना हो गया? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस. ठीक है, ई कांस्टेंट है, ई को हम लोग बाहर ले लेंगे. टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस इंटू डी एस. ठीक है, और अगर हम लोग ये वाला एरिया देखें, अगर हम लोग ये एरिया देखें तो ये हमको किस शेप में दिख रहा है? बेसिकली ये सिलेंड्रिकल शेप है. ठीक है, तो हम लोग किसका एरिया लेंगे? एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज़ 2 पाई आर इंटू एल. तो टोटल सर्फेस इंटीग्रल ऑफ डी एस के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 2 पाई आर इंटू एल. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल. एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो दोनों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फाई ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू ई एंड फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस was equation number 1 and this is equation number 2. तो देखो, if LHS are equal then RHS are also equal. Okay, so from here we can write it as this is equal to this. And since it is a charge enclosed in a cylinder, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, थिन शेप है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी विल यूज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. और Q फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल. ओके, सो हियर वी विल पुट इन द प्लेस ऑफ Q लैम्डा इंटू एल. ओके, एंड फ्रॉम दिस we will calculate the value of E. तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू if you transpose these all values then see first L and L will be cancel out and E is equal to lambda upon 2 pi r into epsilon naught. This is the final equation of the first application of Gauss theorem. Okay, now see the direction. We have already discussed it. The direction of electric field. If the direction of electric field is radially outward, okay, then the charges are positive, and if it is radially inward then the charges are negative. And from this conclusion, from this equation we have concluded that E and R both are inversely proportional to each other. Okay, and lambda and E both are directly proportional to each other. Okay, thank you friends.